فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بعظمتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وامدا ممدودا والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ھذہ الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بر محمد۔ حضرات گرامی قدر، گفتگو کا یہ 5واں مرحلہ ہے اور اس آیت کو سرنامے سخن قرار دینے کی فضیلت حاصل کی ہے۔ اپنے گفتگو کے 6 مرحلے میں 5 دور مکمل ہو چکے، پنجتنی سلسلہ مکمل ہو چکا، اور یہ تو ابتدا ہے اس ماہ محرم کی۔ انشاءاللہ جس صورت میں بھی ہوں گی وہ مجلسیں تو ہوتی ہی رہیں گی۔ دیکھیے ان مجلسوں کا عدد 72 تک پہنچتا ہے جو میں نے شروع کی ہیں، یا 110 تک پہنچتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس پاکیزہ عدد موجود ہیں اور ان کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ بعض چیزوں کی جتنی زیادہ تکرار ہو اتنی اچھی ہے، جیسے محمد و آل محمد پر صلوات، جب پڑھیے جتنی پڑھیے ثواب ہی ثواب ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے عزیزان محترم، موضوع گفتگو ہے اہل بیت اور ہم۔ یہ ہر بار ہر برسہ برس سے اعلان ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ہمارا تعلق کیا ہے، اہل بیت رسالت سے، رسول سے تعلق کیا ہے۔ دیکھیں یہ زمین خون سے بھری ہوئی تھی، اس زمین نے مختلف مناظر دیکھے، اس زمین نے انسان سے انسان کو ٹکراتے ہوئے دیکھا، اس زمین نے انسان کو وحشی جانور بنتے ہوئے دیکھا، اس زمین نے مختلف عجب کیفیتوں کو دیکھا، اس زمین نے بغض کو دیکھا، اس زمین نے حسد کو دیکھا، اس زمین نے نفرت کو دیکھا، اس زمین نے اشتعال انگیزی کو دیکھا، اس زمین نے نفرتوں کے لاووں کو دیکھا۔ اس زمین نے سارے مناظر دیکھ لیے مگر ایک رحمت کا مناظر نہیں دیکھا تھا، رحمت کا منظر نہیں دیکھا تھا۔ تو اس زمین نے فریاد کی کہ پروردگار عالم تو رحمان ہے، رحیم ہے، مجید ہے، کریم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، مالک الملک ہے، علی ہے، عظیم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، تو ہوا علی کل شیء قدیر ہے، تو نور السماوات والارض ہے۔ ہمیں ایک ایسا نور دے دے مگر اکیلا نہ دینا، 14 حصوں میں برابر دینا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو قاضی حاجات ہے، ساری دعاؤں کے قبول کرنے والا ہے، تیرے اختیار میں سب کچھ ہے۔ دیکھیں ہم نیاز مند ہیں مگر تو اللہ الصمد ہے، تو لم یلد ولم یولد ہے، ارے تو ولم یکن لہ کفوا احد ہے، تو احد بھی ہے، واحد بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، تو جامع ہے، تو مقسط ہے۔ ارے تیرے ہی سبب سے ساری عزتیں، تو جس سے ناراض ہو جائے، جس سے تیری رضا چھن جائے وہ ذلیل ہے، بھلے ہی تخت پہ بیٹھا ہو، بھلے ہی سکے رکھا ہو، بھلے ہی سلطنت رکھتا ہو، مگر ذلیل ہے۔
मगर तुझे जिसकी रजा मिल जाए, या वो अली मुर्तजा हो जाए या अली रजा हो जाए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। देखिए, मैं मजलिस रट के नहीं पढ़ता हूं। बुजुर्गों ने एक तरीका सिखाया है कि मियां साहबजादे अली के फजाइल रट के ना पढ़ना, चाहे मिंबर हो चाहे मैदान हो, डट के पढ़ना। सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। वो कायनात का सबसे बड़ा रसूल, जो सिर्फ रसूल नहीं है, सिर्फ नबी नहीं है, नबीउल अंबिया भी है, सैयदुल अंबिया भी है। देखिए, सियादत के सिलसिले बहुत से हैं। सियादत वक्फ है इस घर के लिए। वो सैयदुल अंबिया है। वो जब आया तो फारस की आग बुझ गई। वो जब आया तो बातिल के सुतून गिर गए। अब ना बातिल के सुतून है ना बातिल को सुकून है। अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ हक ही हक है। अब किसी अबू लहब का चेहरा शक हो जाएगा, किसी का चेहरा फक हो जाएगा। अब वो मौजज़े दिखाएगा मेरा रसूल। अब वो रसूल, उसकी ये कैफियत है, उसके चेहरे की वो तजल्ली है कि वो जहां जा रहा है, बेईमान उसे कह रहे हैं कि ये अमीन है, झूठे कह रहे हैं, बल्कि कज़्ज़ाब अकबर कह रहे हैं कि ये सच्चा है, सादिक है। देखिए, ये भी सादिक है, वारिस भी जाफर सादिक है। सलवात पढ़ दें अज़मत इमाम के नाम। तहारतों का सिलसिला है, नजाबतों का सिलसिला है, सिदाकतों का सिलसिला है। इसी से आपको अकीदा तौहीद मिलेगा, यानी लफ्ज बदल के कहूं ला इलाहा इल्लल्लाह मिलेगा। इन्हीं से आपको अकीदा रिसालत मिलेगा, खातिमुन नबुव्वत का अकीदा मिलेगा। लफ्ज बदल के कह दूं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मिलेगा। यहीं से आपको अकीदा विसायत व विलायत व खिलाफत मिलेगा। लफ्ज बदल के कहूं अलीउन वलीउल्लाह मिलेगा। कलेमा पूरा हो जाएगा, दीन कामिल हो जाएगा, सारे ऐलान करेंगे रसूल। और रसूल की मदद कौन करेगा, कौन नुसरत करेगा? देखिए, एक चचा हैं रसूल के और एक जौजा हैं, इताअत गुजार जौजा। देखिए, इस्लाम पे मुख्तसर से लफ्जों में अर्ज कर दूं, ज्यादा तफसील में जाने का वक्त नहीं है। इस्लाम पे दो का एहसान है। ये जो इस्लाम की तजल्लियां हैं, इस्लाम की रौनकें हैं, दो की वजह से। अबू तालिब की तलवार की वजह से, खदीजा के दस्तरखान की वजह से। दोनों की अजमत के नाम बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक तिजारत का काफिला जा रहा था मक्के से, जनाब अबू तालिब जा रहे थे शाम की तरफ। रसूलुल्लाह को कुछ इतनी मोहब्बत थी अपने चचा से, कहने लगे कि मैं भी चलूंगा, कम से नहीं है। ले गए और रास्ते में एक कलीसा पड़ा, एक चर्च पड़ा, वहां इस काफिले का क़याम हुआ। अब देखिए, दूर से एक राहिब ने खिड़की खोली उस कलीसे की, इस मुख्तसर से तिजारत के काफिले पे नजर गई। देखिए, नजरों से किसी चेहरे को पहचानने वाले कैसे होते हैं। वो राहिब चूंकि आलिम था, इंजील का कारी था, इंजील का आलिम था, इंजील को समझने वाला था, आसमानी किताबों में आसमान वालों की निशानियों को समझने वाला था। उसने जैसे ही रसूल के चेहरे को देखा, निगाहें रुक गईं, पेशानी मुस्तफा की तिलावत की, किसी आसमानी सहीफे की तरह वजह मुस्तफा की तिलावत की। और उसके बाद कहा कि इस पूरे काफिले को बुलाओ, अब इसे इत्तिफाक कहिए या हुस्ने इत्तिफाक, ये दोनों कहिए, दोनों का इम्तिजाज कहिए कि जनाब इमरान हजरत अबू तालिब ने रसूलुल्लाह को सामान के साथ छोड़ दिया। देखिए, बाज बातें इसलिए भी होती हैं कि ऐलान हो जाए, रसूल सामान के साथ है, पूरा काफिला आ गया। उस राहिब ने कहा कि वो जवान कहां है?
उसी की वजह से तो सबको खाने पे बुलाया था। देखा रसूल के सदक़े में कहां कहां खाया है, मगर नस्ली नमक हराम है। रसूल आए, पहचान लिया, और उस राहिब ने जनाब अबू तालिब से यही कहा कि इस जवान की हिफाजत करना। मैं कहना यह चाहता हूं कि पहचानने वाले ने एक नजर में पहचान लिया। अरे बाज अफराद सारी उम्र साथ बैठे रहे, रसूल को ना पहचान पाए, रिसालत के पैगाम को नहीं पहचान पाए। देखिए, जमाल रसूल, कमाल रसूल, नूर रसूल, ईमान रसूल, अंदाज रसूल, गुफ्तार रसूल। ये मैं आज क्यों रसूल का तस्करा कर रहा हूं? इसलिए कि मुझे उस हमशक्ल रसूल का तस्करा करना है जो सीरत में, सूरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में हमशक्ल मुस्तफा है। कौन? अली अकबर। इतनी मुशाबिहत, और अली अकबर रोज सलाम कर रहे हैं। देखिए, किसी की शक्ल किसी से मिल जाए, यह किसी के इख्तियार में नहीं है। कुरान बता रहा है हमें, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फी अरहामिकुम, वो अल्लाह है। अल्लाह के नामों में एक नाम मुसव्विर भी है। भाई, सारी तस्वीरें बनाने वाला मेरा अल्लाह है। अजीब रुख आपके सामने पेश कर रहा हूं। भाई, कोई किसी की शबीह हो जाए, लोग शबीह बनाने को तो हराम कहते हैं ना। अरे अगर अल्लाह खुद शबीह बनाए, अरे बड़ी नाजुक बात मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। अगर अल्लाह खुद शबीह बनाए तो आप क्या करिएगा? और अली अकबर हम शक्ल मुस्तफा हैं। अब मैं किसी शायर के दो अजीब मिसरे पढ़ने जा रहा हूं कि शबीह बन के पैगंबर सलाम करते हैं, हुसैन को अली अकबर सलाम करते हैं। अल्लाह अकबर। यह दिखाना मकसूद था कि इस लश्कर हक में सब हैं। देखिए, वो जो इंतखाब जात रिसालत हुआ है, वो किस लिए हुआ है? जमाना समझ जाए। बड़ा हुस्न यूसुफ का चर्चा था। यूसुफ के हुस्न को देखा, फख्र यूसुफ के हुस्न को भी देखो। ये हैं अली अकबर, हम शक्ल मुस्तफा। देखिए, ऐसे अफराद जिंदा थे जिन्होंने रसूल को देखा था, रसूल की शक्ल जिन्हें याद थी। अब वो कहते थे, आपने रिवायतों में सुना है कि जब अब्बास और अली अकबर मदीने की गलियों से गुजरते थे तो बुजुर्ग ये कहते थे कि आज हमें वो जमाना याद आ गया कि जब अली और रसूल मदीने की गलियों से गुजरते थे, सलवात बुलंद होती थी, वो मनाजिर याद आते थे। ये मोहब्बत होती है अज़ीज़ान मोहतरम। आपको मोहब्बत है तो आप ये बात सुन के रो रहे हैं, मगर सोचिए कि कैसे शकी थे कि जो समझ रहे थे, कह रहे थे कि ये हम शक्ल मुस्तफा हैं, मगर दुश्मनी पे आमादा थे। हाँ, आज मुहर्रम की 6ठी तारीख है। उलमाए लखनऊ का दस्तूर है कि एक एक तारीख वक्फ है, दामने वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं है। फिर भी अर्ज कर दूं, रिवायत बताती है कि जब अली अकबर की विलादत हुई और अली अकबर गहवारे में रहते थे, तो जनाब उम्मे लैला से रिवायत है कि एक शब बयान करती हैं कि मैंने गहवारे के नजदीक एक साया देखा, एक अजीब साया देखा। कहा, मैं डर गई, घबरा गई कि रात के इस पहर कौन है। आवाज दी कि कौन है जो मेरे बच्चे के झूले के करीब है। कहा, उम्मे लैला घबराओ नहीं, मैं हुसैन हूं। कहा, आका इस वक्त रात के इस पहर आप इस हुजरे में क्या कर रहे हैं? कहा, मैं मजबूर हूं, अली अकबर की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती है। अल्लाह अकबर। साहिबान औलाद जानते हैं कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है। अली अकबर ऐसा बेटा। शब आशूर आ गई, कयामत की शब है। इसमें एक मंजर ऐसा भी देखा गया कि एक हुजरा है, एक मां के हाथों में एक शमा है और जवान बेटे का चेहरा है। काश ये रात इसी तरह गुजर जाए, काश इस रात की सुबह ना हो, इसलिए कि ये मंजर कल नहीं होगा। कल तो ये मैदान लाशों से भर जाएगा।
जनाब ज़ैनब की फरमाइश पर जनाब अली अकबर ने मैदान करबला में आजान दी और एक गुजारिश की, कहा बाबा मेरी बहन सुगरा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है बाबा, मैं चाहता हूं कि मेरी आखिरी अजान सुगरा भी सुन ले। अल्लाह अकबर। सुगरा के कानों में अल्लाह अकबर की आवाज आई, सुगरा समझी कि काफिला वापस आ गया। इधर ज़ैनब ने अली अकबर की अजान सुनी, बेहोश हो गई। अल्लाह अकबर। सुबह से एक सिलसिला है, अंसार इजाजत मांगते, रफीक इजाजत मांगते हैं, हुसैन सबको इजाजत दे रहे, मगर अली अकबर को इजाजत दें तो किस दिल से इजाजत दें। जब अली अकबर ने इजाजत मांगी, कहा मेरे लाल तुम मेरे दिल की ठंडक हो, तुम नाना की जीती जागती तस्वीर हो, जब नाना की जियारत को जी चाहता है तुम्हारे चेहरे को देख लेता हूं अली अकबर। एक वक्त वो आया कि जब लश्करे आदा से लश्करे की से आवाजें आने लगी कि हुसैन क्या तुम्हारा कोई नासिर नहीं बचा, कोई मददगार नहीं बचा। अली अकबर को गैज आ गया, कहा बाबा जवान बेटा ये ताने बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हुसैन ने सर को झुका के कहा कि अली अकबर जाओ मां से इजाजत लो। जनाब उम्मे लैला के पास आए अली अकबर, मां की आंखों में आंसू आ गए। कहा अली अकबर जाओ, तुम्हारी फूफी ने तुम्हें पाला है, अपनी फूफी से इजाजत लो। जैसे ही खैमे का पर्दा उठा, जनाब अली अकबर जनाब ज़ैनब के खैमे में दाखिल हुए। जनाब ज़ैनब घबरा गई, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। कहा मेरे लाल अली अकबर क्या इसी दिन के लिए पाला था? कहा फूफी अम्मा गला एक है खंजर दो है, अरे या मुझे बचा लीजिए या अपने भैया को बचा लीजिए। देखिए कौन है अली अकबर, बहनों के चहीते भाई हैं, फूफी का लाडला भतीजा है, अब्बास का लाडला भतीजा है, हुसैन का लाडला बेटा है। अरे रुखसत हो तो क्यों करो। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि खैमे का पर्दा कभी उठता था कभी गिरता था, अरे बीबियों में शोर गिरिया था। अली अकबर मैदान की तरफ जाते, गैस की कैफियत में एक मर्तबा महसूस किया कि कोई पीछे पीछे आ रहा है। अली अकबर ने पीछे पलट के देखा, हुसैन कमर को झुकाए हुए अली अकबर के पीछे पीछे आ रहे हैं। कहा बाबा इजाजत तो दे दी बाबा, अब क्यों पीछे पीछे आते हैं बाबा? कहा अली अकबर काश तुम साहिब औलाद होते। वो हुर का बेटा याद है ना, वो जुमले याद है ना कि जब हुर के बेटे ने आवाज दी तो हुसैन घोड़े को दौड़ाते हुए पहुंचे और हुर से कहा कि हुर क्या इस बुढ़ापे में जवान फर्जंद का लाशा उठाओगे? अरे लीजिए मैदान से अली अकबर ने आवाज दी, बाबा आखिरी सलाम कबूल कीजिए बाबा, अब हुसैन से चला नहीं जाता है। या अली या अली या अली। अरे कभी गिरते हैं कभी संभलते हैं। कहा मेरे लाल अली अकबर आवाज देते रहो, अरे तुम्हारे बाद जिंदगानी है दुनिया पे खाक अली अकबर। वाह मुसीबता वाह हुसैना वाह मजलूमा। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाए तस्लीमन लिअम्र।